Right. Basically what we need to do today is हमने non-linear analysis वाली चीज start करनी. So this lecture will talk about the general overview of the non-linear analysis. किस type की non-linearities होती हैं? What are the general approaches used in FEA softwares to carry out non-linear analysis? Then for the next 2 weeks we'll talk about non-linear geometry, and then the following 2 weeks we'll talk about non-linear materials, and we'll continue to solve problems in COMSOL. So we'll talk about 2 problems in COMSOL today as well. ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा theory वाला part बहुत ज़्यादा नहीं होगा, and then we'll switch to the COMSOL part and we'll talk about 2 different problems जिनके अंदर हम non-linearity introduce करके we'll see how the problem solution is changing when I switch non-linearity on the problem. So that's the idea. Right. तो इस topic के हमारे जो goals हैं, we need to familiarize ourselves with this non-linear analysis part. तो हम लोग non-linearity को समझना चाह रहे हैं. Where does it arise from? How is it different from a linear problem? Stresses, strain, non-linearity में किस तरीके से different होंगे? How to actually solve these problems? ठीक है, और ये कहाँ का difficulties हम experience कर सकते हैं solution के दौरान? Those sort of things we need to talk about. ठीक है, कुछ चीजें इसमें इसी topic में discuss हो जाएंगी, कुछ चीजें अगले topic के अंदर भी आ रही होंगी. So we'll keep on discussing about these questions for the 3 topics that we'll do from now on. Non-linear हमारे पास जो problems होती हैं उसको समझने के लिए let's first talk about what is going on in linear problems. So linear problems के अंदर हमारे पास क्या हो रहा होगा कि हमारा जो भी system form हो रहा है वो एक तो उस पे वो distributed हम उसको loads वगैरह distribute करके solve कर सकते हैं, which means कि हम उसमें superposition के principles लगा सकते हैं. तो if you have any loads जिसके result में हमारे पास कोई displacements आ रही होंगी, तो this is just a function कि जिससे अगर मैं displacement से reactions निकाल सकूँ या फिर मैं let's say forces से मैं displacement निकाल सकूँ, this A function is signifying that. So if I have 2 sets of these applied loads, then हमारे पास solution जो है that since it's linear, so we can use the superposition principle. We can divide the loads and solve each of the loads separately, and the resultant is going to be the sum of the 2 loads. So this is possible only in linear problems. हमारे पास non-linearity comes in every problem except for the linear structure problem. तो अगर हमारे पास एक linear elastic material है with small strains, small deformation and very small rotations, then we have a linear problem. अगर इनमें से कोई भी चीज हट जाएगी तो we are going to have a non-linear problem. और अगर हमारे पास linear problem है, then we have a relationship like this. ठीक है, तो हमारे पास ये relationship normally जो होती है, this is f equals to kx, f equals to kd, and we are saying it is linear because हम लोग यहाँ पे इसको एक linear system की तरीके से लिख सकते हैं. हमारी जो relationship FEA की जो हम हर दफा form करते हुए आ रहे हैं, which we eventually convert everything into this form, and this is only possible since we have a linear system of equations. अगर linear system of equations नहीं हो तो हम ये वाली separation जो है वो नहीं कर सकते. We will need to use some other techniques to solve those problems, and we'll look at those techniques. Right. हमारे पास जो linear structural problem है उसमें अगर हम forces से लेकर displacement तक की relationship देखें तो we have multiple relationships. ठीक, forces are related to your stresses, stresses are related to your strains, and strains are related to your displacements. All of these relationships need to be linear. इनमें से अगर कोई भी एक चीज non-linear हो जाती है तो our solution is going to be non-linear. Okay, for example, अगर stress-strain relationship is non-linear, for example, there is plasticity in the system. So if there is plasticity in the system, that is going to convert this relationship to non-linear. ठीक है, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा बड़े strains आ रहे हैं, let's say more than 2%, 3% strains आ रहे हैं, let's say 10% strains, then आपकी जो strain और displacement की relationship है ये non-linear हो जाती है. ठीक,
अगर आप की फोर्सेस ऐसी हैं कि फॉलोअर फोर्सेस हैं कि आपकी फोर्स फॉर एग्जांपल हमेशा नॉर्मल टू द सरफेस रहती है, जैसे सरफेस रोटेट होता है फोर्स भी रोटेट होती है, then that relationship is the force stress relationship which is becoming nonlinear. तो इनमें से कोई भी एक चीज नॉनलीनियर हो सकती है और उसकी वजह से हमारा सॉल्यूशन जो है कंप्लीटली नॉनलीनियर हो जाएगा, हम लीनियर अप्रोक्सीमेशन नहीं कर सकेंगे. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर. फॉर एग्जांपल हम स्ट्रेस नॉर्मली निकालते हैं, वी से स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, बट वी हैव टू डिफरेंट एरियाज. तो अगर मैं एक इनिशियल एरिया ले रहा हूँ, फाइनल एरिया ले रहा हूँ, and we do have an idea about this from our previous background. So हम लोग ओरिजिनल एरिया के रिस्पेक्ट से भी स्ट्रेस निकाल सकते हैं और करंट एरिया के रिस्पेक्ट से भी स्ट्रेस निकाल सकते हैं. A एज अ फंक्शन ऑफ F मींस कि जैसे जो करंट लोड है उस लोड के ऊपर क्या क्रॉस सेक्शन एरिया बना है, दैट इज A एज अ फंक्शन ऑफ F. तो which one would we choose? And what would happen if I have a linear analysis going on? Similarly, अगर मैं स्ट्रेन की बात कर रहा हूँ तो इट्स डेल्टा L अपॉन L, बट वी हैव टू डिफरेंट लेंथ्स. क्या मैं इसको ओरिजिनल लेंथ के रिस्पेक्ट से डिस्कस करूँ या फाइनल लेंथ के रिस्पेक्ट से डिस्कस करूँ? बोथ ऑफ दीज आर पॉसिबल. तो which of these is the correct one? Which of these needs to be used? This needs to be discussed. ठीक है, ये चीज जो है इसमें कोई ना कोई डिसीजंस लेने पड़ते हैं, ये ऐसी रैंडम चीज नहीं हो सकती. एक्सेप्ट द केस जब हमारे पास लीनियर एनालिसिस हो रहा हो. लीनियर एनालिसिस के अंदर what we are going to have is we are going to have very small strains and very small displacements, very small rotations and linear stress strain relationship. अब इन दोनों केस में अगर मैं आ जाऊँ तो होगा क्या? Since the strains and the displacements are very small, A naught and A are very close to each other. And we can approximate them to be the same. We can approximate कि इन दोनों से हमारे solution के ऊपर कोई difference नहीं आ रहा. तो चाहे हम B naught ले रहे हो या A ले रहे हो, it would not result in a major shift in the final answers. Similarly, मेरा L naught और L will be very close to each other since my epsilon is very small. तो चाहे मैं L naught के respect से अपना strain calculate कर रहा हूँ या L के respect से कर रहा हूँ, they are going to be the same. And this thing is true when my strains are less than 0.2%. 0.2 percent का मतलब है 0.002 epsilon है मेरा, which is very small. ठीक. तो in linear analysis we do not need to concern ourselves with these questions कि मैंने कौन सी डोमेन को कंसिडर करना है, अनडिफॉर्म्ड यानी ओरिजिनल डोमेन को कंसिडर करना है या फिर डिफॉर्म्ड और फाइनल डोमेन को कंसिडर करना है. बट नॉन लीनियर एनालिसिस के अंदर वी विल नीड टू टॉक अबाउट दिस. ठीक है ना. तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस है जो हमें इवेंचुअली आंसर करने पड़ेंगे. अगर हम लीनियर प्रॉब्लम्स की बात करें तो हमारे पास लीनियर स्ट्रेन्स होते हैं. लीनियर स्ट्रेन्स ये जो हमने डेफिनेशन पहले भी देखी थी, यू आई कॉमा जे जो हम करते हैं और उसके बाद यू आई कॉमा जे कर रहे हैं और यू जे कॉमा आई कर रहे हैं और उनको हम एवरेज आउट कर रहे हैं. ठीक है. अगर मेरे पास I और J सेम है, this becomes a normal strain which becomes U XX या फिर U Y U epsilon XX epsilon YY epsilon ZZ जो होंगे उस केस में I and J are same, तो partial QX by partial X हो जाएगा और ये सेम हो जाएंगे तो हाफ की टर्म कैंसिल हो जाएगा. Similarly, partial Y by partial Y हो जाएगा, partial Z by partial Z हो जाएगा. तो we have normal strains. और अगर मेरे पास shear strains होंगे, then this could be XY or XZ or YZ, and we have the formulas which are already known to us. हमें पता है ये वाले formulas. But अब हमें इस केस में we don't need to worry about यहाँ पे coordinate कौन सा चल रहा है. Normally we assume the undeformed coordinate, original coordinate की फॉर्म में बात कर रहे होते हैं. But हमने अभी तक इस चीज को डिस्कस किया ही नहीं है कि मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम भी चेंज हो सकता है. ठीक है. तो इट इज इन अ लार्ज डिफॉर्मेशन एनालिसिस, सॉरी, in a large deformation analysis
मेरे पास क्या हो रहा होगा, इट इज पॉसिबल कि मेरा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम इनिशियली जो चल रहा है इसको हम यूजुअली अनडिफॉर्म सिस्टम को कन्वेंशन या कैपिटल कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। हो सकता है कि आफ्टर deformation this coordinate system rotates and shifts to a different location. Sorry, ठीक है, तो it is possible that my coordinate system switches. तो अगर मैं दोनों coordinate system के respect से अपने strains वगैरह calculate कर रहा हूँ, they're going to come out to be different. In a linear analysis we do not need to worry about this. हम लोग सिर्फ undeformed coordinate की बात कर रहे थे अभी तक, हमने कभी भी coordinate system के movement की और rotation की बात नहीं की, अब हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, लीनियर प्रॉब्लम में क्या क्या हो रहा है, इन्फिनिटेसिमल डिफॉर्मेशन है, तो हमारे पास बहुत स्मॉल स्ट्रेन्स हैं, लीनियर स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है, सिग्मा इक्वल्स टू डी कॉन्ट्रैक्टेड विद एप्सिलॉन हम लेते हैं, हमें पता है ये वाली चीज भी हम पढ़ चुके हैं, हम यूज भी कर रहे हैं, ये वाला मैट्रिक्स फॉर्म में हम इसको सिग्मा वेक्टर इक्वल्स टू डी मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन वेक्टर लिखते हैं, एफए का हमने जो लीनियर पार्ट पढ़ा था, राइट। इसमें डी मैट्रिक्स हमारा कांस्टेंट होता है फॉर एन एलिमेंट, क्यों, क्योंकि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द डिफॉर्मेशन। तो अगर आपकी इलास्टिसिटी फिक्स्ड है, आप डी मैट्रिक्स को एक दफा कैलकुलेट कर लेते हैं फॉर वन एलिमेंट एंड यू कैन कीप ऑन यूजिंग इट। हर एलिमेंट के लिए डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, बट फॉर वन एलिमेंट वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट इट वंस एंड वी कैन कीप ऑन यूजिंग इट। इन अ नॉनलीनियर एनालिसिस डी चेंजेस विद डिफॉर्मेशन। इट इज पॉसिबल कि आप जैसे जैसे प्लास्टिकली डिफॉर्म हो रहे हैं, आपकी बॉडी डिफॉर्म हो रही है, तो आप का जो कर्व है, फॉर एग्जांपल हम सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ले लें अगर, तो इट इज पॉसिबल कि इनिशियल पार्ट के अंदर इट इज ऑल राइट, आई कैन जस्ट अज्यूम इट टू बी लीनियर, बट आफ्टर दिस पॉइंट माय स्लोप चेंजेस। जैसे मेरा स्लोप चेंज होगा तो मेरी ये रिलेशनशिप जो है, ये रिलेशनशिप चेंज हो जाएगी। So I can't have a constant element stiffness matrix. Stiffness matrix is going to keep on changing with deformation, and that is where nonlinearity is coming from. आपकी constant displacement boundary conditions, आपने जिधर displacement boundary condition apply करती है, it will stay like this. हम देखेंगे कि nonlinearity में क्या हो सकता है। Applied forces भी आपकी constant है, जो हैं तो वो उसी तरीके से apply हो रही हैं. It is they are not changing with the solution during the solution. नॉनलीनियर प्रॉब्लम्स के अंदर क्या होगा कि आपकी ज्योमेट्रिक नॉनलीनियरिटी भी हो सकती है, कि आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप नॉनलीनियर है, आपकी मटेरियल नॉनलीनियरिटी हो सकती है कि नॉनलीनियर कॉन्स्टिट्यूटिव मटेरियल हो जाए जिसमें प्लास्टिसिटी है, विस्कोप्लास्टिसिटी है, क्रीप है, विस्को इलास्टिसिटी है, हाइपर इलास्टिसिटी है, a lot of things can happen. काइनेमेटिक नॉनलीनियरिटी हो सकती है जिसमें आपकी डिस्प्लेसमेंट बाउंड्री कंडीशन चेंज हो रही है। फॉर एग्जांपल कोई चीज, दो बॉडीज हैं जो कि इनिशियली अलग अलग थी, बट after some time they come in contact with each other and they are constraining each other's motion. ठीक है, तो contact problems are kinematic nonlinearity. Force nonlinearity ये हो सकती है कि आपके loads follow कर रहे हैं। For example, अगर मैं एक body के ऊपर pressure apply कर रहा हूँ इस तरीके से, अभी हमारा solution जो होता है, it assumes that my body is deforming like this and my pressure stays the same way, but in reality होगा क्या, अगर pressure है, pressure is always normal to the surface, तो जैसे जैसे body deform होती जाएगी आपका pressure body के normal रहेगा and it will rotate with the body, so the load is dependent on your deformation. तो जैसे जैसे deformation हो रही है आपके load की orientation change हो रही है, तो आपको force का जो vector form हो रहा है in your element matrix, the force vector is changing with deformation, तो वो d के ऊपर dependent है, तो f vector is dependent on the d vector. ठीक हो गया। तो अब ये जो हमारी नॉनलीनियरिटीज इस सिस्टम में किस जगह पे एग्जिस्ट करेंगी, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। तो अगर हम अपनी सारी रिलेशनशिप को शो करें तो हमारे पास स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है। स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप हमारे पास क्या होती है, इट इज सिग्मा इक्वल्स टू डी एप्सिलॉन होती है। ये जो होती है हमारे पास स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप, इट इज नॉर्मली एप्सिलॉन इक्वल्स टू बी डी, हम लोग उसको लेते हैं, ठीक है। दीज आर लीनियर पार्ट्स,
but it is possible that they become non-linear. तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी एक रिलेशनशिप नॉन-लिनियर हो रही है, आपका सॉल्यूशन नॉन-लिनियर हो जाएगा. तो हमने जो 4 नॉन-लिनियर की बात की वो यहाँ पे शो हो रही है कि नॉन-लिनियर डिस्प्लेसमेंट बाउंड्री कंडीशंस आपके पास प्रिस्क्राइब्ड डिस्प्लेसमेंट को नॉन-लिनियर बनाता है. Large strains, large deformations, large rotations आपकी strain displacement relationship को non-linear बना रही है. अगर आपका material non-linear है, वो stress strain relationship को non-linear बना रही है. अगर आपकी forces non-linear हैं कि forces are deformation dependent, तो वो आपकी applied forces को non-linear बना रही है. तो any of these can be non-linear. ठीक है. Now we'll talk about each of these cases a little bit. ठीक है, ये बारी-बारी देखते हैं. For example, अगर हम geometric nonlinearity की बात करें, this is the simplest to understand कि हो क्या रहा है, because it's we can visualize this directly. Deformations जो इसकी geometric nonlinearity में होती हैं आपकी, चाहे वो displacement की बात कर रहा हूँ, rotations की बात कर रहा हूँ या फिर directly strains की बात कर रहा हूँ, they become very very large. तो अगर हम एक नॉन-लिनियर स्ट्रेन की बात करें, we'll have a look at ये नॉन-लिनियर स्ट्रेन, why is it coming up like this, अगले लेक्चर के अंदर जिसमें ज्योमेट्रिक नॉन-लिनियरिटी की बात करेंगे, we'll talk about this. तो अगर हम हायर ऑर्डर टर्म्स की बात कर रहे हैं, तो du by dx का स्क्वायर हो रहा है, this is a non-linear term. If my du by dx itself is very small, अगर ये बहुत छोटा है, then this higher order term becomes very very small and can be ignored. तो ये जो नॉन-लिनियर टर्म है, this can be ignored when my strains are small. ठीक है, infinitesimal strains के लिए we can ignore the non-linear part. But अगर my strains are finite strain, ये जो हम इसको large deformation को finite strain, finite deformation problems कहते हैं. It's not infinitesimal. तो it is a quantity which cannot be ignored. ठीक, तो in that case आप फिर इस हायर ऑर्डर टर्म को इग्नोर नहीं कर सकेंगे. We'll need to keep this in our solution and that will make our solution non-linear. सही है. अगर हम इसी चीज को थोड़ा सा और देखें, एक इसमें और प्रॉब्लम ये आता है कि हम लोगों को देखना पड़ेगा कि हम अपने FE के अंदर we are taking volume integrals. ठीक है, हम लोग ये चीज देख चुके हैं कि हमें वॉल्यूम इंटीग्रल लेना पड़ता है. फॉर एग्जांपल दिस थिंग इज द स्ट्रेन एनर्जी ऑफ अ बॉडी. ठीक है, एप्सिलॉन और सिग्मा का को अगर मैं मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम इंटीग्रल ले लूं, दिस इज द इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी ऑफ द बॉडी. तो अगर मैं इलास्टिक स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाह रहा हूं, तो दिस इंटीग्रल नाउ इज फॉर एग्जांपल डन इन द फाइनल डोमेन. तो ये फाइनल डोमेन तो नोन ही नहीं है. एट द स्टार्ट व्हेन आई एम डूइंग माय FE एनालिसिस, आई डू नॉट नो व्हाट दिस फाइनल डोमेन इज. तो how will I be able to solve this integral? हम नहीं कर सकते. This means कि जो मेरा इंटीग्रल है वो solution dependent है. मेरा डोमेन जो solution dependent है वही इंटीग्रल से मैं solution निकालना चाह रहा हूँ, तो this entire problem becomes non-linear. ठीक है, इस ज्योमेट्रिक नॉन-लिनियरिटी की डिटेल जो है वो अगले टॉपिक के अंदर आएगी, बट राइट नाउ वी जस्ट ट्राइंग टू लुक एट व्हाट इज कॉजिंग दैट नॉन-लिनियरिटी. एक तो चीज ये आ गई कि मेरा स्ट्रेन इटसेल्फ इज नॉन-लिनियर. ठीक है, तो स्ट्रेन नॉन-लिनियर था तो नॉन-लिनियरिटी प्रोड्यूस होता. बट लेट्स अज्यूम कि मेरा स्ट्रेन नॉन-लिनियर नहीं था, बट मेरी डोमेन मेरा काफी मॉडिफाई मतलब रोटेट हो गया डोमेन, या कुछ डोमेन में ऐसी चीज हुई कि डोमेन घूम गया. फॉर एग्जांपल लेट्स से कि डोमेन वाज लाइक दिस एंड देन इट स्विच्ड टू दिस प्लेस. If it's just a pure rotation from original shape to the final shape, then there is no strain in the body. Body सिर्फ rotate हुई, body stretch नहीं. बट मेरे इंटीग्रल पे फर्क पड़ जाएगा, बिकॉज द इंटीग्रल नीड्स टू बी डन. फॉर एग्जांपल अगर मेरा ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो नाउ हाउ वुड आई टैकल दिस चेंज ऑफ मतलब ओरिएंटेशन. देयर आर वेज टू हैंडल दिस. देयर आर स्ट्रेस मेजर्स एंड स्ट्रेन मेजर्स व्हिच कैन टेक केयर ऑफ दिस इम्प्लिसिटली, कि इस रोटेशन को डायरेक्टली हैंडल कर लेते हैं. बट we need to learn about that. So, but at this moment, this simple rotation is going to cause a problem in our integration. Integration में करने नहीं देगी, because our domain itself is changed. हालांकि हमारी strain नहीं बढ़े, body में strains, body has not stretched or deformed in any way. It has just purely rotated. But our integral now is very difficult to calculate.
ठीक. So this is the two examples of geometric nonlinearity, large strains and large rotations की बात कर रहे हैं. अगली जो हमें टाइप की बात करनी है that is material nonlinearity. अब material nonlinearity linear elastic material में पता है हम ये चीज जो हम ये पहली रिलेशनशिप यहाँ पे लिखी हुई हम यूज करते आ रहे हैं sigma equals to d times epsilon. D depends आप किस टाइप का मटेरियल ले रहे हैं. हमने 1D के जगह 1D में D becomes simply E and plane stress और plane strain के केस में that is a 3x3 matrix. ठीक है ना. और अगर हम इसको 3 dimensions में देखेंगे this will become a 6x6 matrix. सही, क्योंकि मेरे पास 6 स्ट्रेस के कंपोनेंट्स हैं, 6 स्ट्रेन के कंपोनेंट्स हैं और सबको मैंने रिलेट कराना है. This thing is only true for linear elastic materials. Generally ये चीज true नहीं. Generally sigma will just be a function of epsilon and we'll need to somehow find a solution to this problem. ठीक है, हमें देखना पड़ेगा. अप्रोच क्या होती है? अप्रोच यूजुअली होती है कि अगर आप बॉडी की स्ट्रेन एनर्जी निकाल लें तो स्ट्रेन एनर्जी का आप एप्सिलॉन के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास स्ट्रेस निकल के आ जाता है. तो ये एग्जांपल लीनियर इलास्टिक मटेरियल की है. तो लीनियर इलास्टिक मटेरियल का स्ट्रेन जो है सिंस सिग्मा इज इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन, तो अगर मैं उसकी स्ट्रेन एनर्जी डेंसिटी को सिग्मा टाइम्स एप्सिलॉन कर रहा हूँ, हाफ सिग्मा टाइम्स एप्सिलॉन, तो सिग्मा की जगह आई प्लग्ड इन. तो दिस व्हाट इज दिस एग्जैक्टली? दिस इज half sigma times epsilon where I have plugged in sigma equals to E epsilon. ठीक है ना. तो ये linear material example जी, this is for a linear material. So if I just take the derivative of this strain energy density with respect to my strain, I get my stress. But this does not need to be this simple. It can be anything. ठीक है. अगर मेरी strain energy एक complicated function nonlinear function भी बन रहा है strain का, then I can just take the derivative with respect to the strain and I can find out my stress. That would be a nonlinear relationship, but it is possible to find that. एक important point जो है ना, which is very very crucial in talking about nonlinear materials, is path dependency. ठीक है. तो अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल एक इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल, जो ऑफ कोर्स यू गाइस हैव एन आइडिया अबाउट दिस डेफिनेटली, तो बट वी जस्ट वांट टू मेक सिंपलीफाइड मॉडल्स में मैं एक और चीज एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ. तो नॉर्मली हम लोग का जो इलास्टोप्लास्टिक कर्व होता है दैट इज अ फेयरली कॉम्प्लिकेटेड कर्व दैट इज obtained experimentally. तो हम उसको in finite element models हम उसको approximate कर रहे होते हैं using some analytical functions. So the simplest of those is a bilinear curve. Bilinear curve ये होता है कि मेरे पास elastic part है, एक जगह पे मेरे पास yielding हुई, and after yield I have another tangent modulus which covers my plastic region. So this is a bilinear plasticity model. ठीक. अब हमें पता है कि plasticity is a path dependent phenomena. तो if I want to strain my body up to let's say 0.05%, it is going to follow this path. Loaded, it will be loaded here. It will come to this point and will stay. This will be the stress of the body. So let's say this sigma 1 is the stress of the body. If I unload my body, it will drop back following my elasticity curve. But the next time I load this thing, ये इसका initial system का plastic curve strain हो गया, ठीक है ना? Of course, this is fairly standard stuff. Next time when I load this thing, it is going to follow this curve. This is the new yield stress. So this thing is the new yield stress. तो इसके अंदर strain hardening, this is known as the strain hardening thing, कि आपने उसको plastically deform किया तो it is hardened up, तो अब थोड़ा ज़्यादा stress के ऊपर it is going to plastically deform, and after that it can start following this curve again. So the point I want to make here is कि
this entire thing is history dependent and path dependent. आपको सिर्फ अपनी बॉडी की करंट स्टेट की पता होनी चाहिए, उसकी पास्ट हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए in order to accurately solve plastic problems. ठीक है ना? तो path dependency is a feature of non-linear problems. Linear problems में ऐसा नहीं होता. अगर मैं सिर्फ इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ, तो अगर मुझे इनमें से किसी भी पॉइंट का स्ट्रेस चाहिए, तो आई जस्ट नीड टू नो कि मेरे पास कितना स्ट्रेन है. दिस इज ऑफ कोर्स गोइंग टू बी इलास्टिक स्ट्रेन, और उसके रिजल्ट में मुझे अपना स्ट्रेस पता चल जाएगा. ठीक. बट इफ आई वांट टू if this is only the elastic, if it is only elastic, but if this is an elastoplastic model, for this same strain, I can have two solutions. I can have this solution as well as this solution. Depending on the case कि मेरे पास हिस्ट्री क्या है, क्या मटेरियल ऑलरेडी प्लास्टिकली डिफॉर्म हुआ हुआ है क्या हुआ. ठीक है. तो दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू कंसीडर. Our dependency is very. सर एक चीज पूछनी है. एक मिनट प्लीज. मुझे एक मिनट दीजिए, यहाँ पे कुछ ऑडियो का इशू हो रहा है, मुझे आपकी आवाज समझ में नहीं. लेट मी फिक्स दैट एंड देन आई विल रिकनेक्ट. जी अब मैं सबक पूछिए, क्या कह रही थी? जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो आप पाथ डिपेंडेंसी के बता रहे हैं कि मटेरियल की हिस्ट्री पता होनी चाहिए, तो सर इसमें मटेरियल पे अगर कोई एक्स्ट्रा वर्क लाइक हीट ट्रीटमेंट भी हुआ होगा तो वो भी इस चीज को कंट्रीब्यूट करेगा? बिल्कुल बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा. तो आपके पास अगर हम प्योरली प्लास्टिक प्रॉब्लम सॉल्व करें, लेट्स से कि हम अपने एफईए मॉडल के अंदर करंटली थर्मल प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे, देन वी जस्ट नीड टू नो कि इसमें क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, पास्ट ट्रीटमेंट क्या हुई है, दैट इज गोइंग टू जनरेट अवर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व. ठीक है. तो लेट्स से कि मैंने अपने मटेरियल के ऊपर कोई हीट ट्रीटमेंट कर ली है, एंड बिकॉज ऑफ दैट हीट ट्रीटमेंट आई एम getting a stress strain curve like this. So I can just work with this. But normally हम elastoplastic material में we can talk about temperature dependency as well. So in your FEM model, it is possible to have multiple stress strain curves. And उससे क्या हो रहा होता है, तो आप this is for example at temperature T1, then T2, then T3 and T4, और आपके पास जो भी टेम्परेचर करंटली इस सिस्टम के अंदर चल रहा होता है, लेट्स से कि आप एक थर्मोस्ट्रक्चरल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, डिफरेंट रीजन्स हैव डिफरेंट टेम्परेचर, सो एवरी एलिमेंट्स, एवरी गाउस पॉइंट जिसके ऊपर इंटीग्रेशन हो रही है, उसके ऊपर वो करंट टेम्परेचर चेक करेगा, और उसका स्टिफनेस मैट्रिक्स वहां पे जो उसकी कंट्रीब्यूशन है मटेरियल की, that is going to come up from the correct temperature curve, जो भी उस वहां का एप्लीकेबल टेम्परेचर होगा. एंड लेट्स से कि मैं मेरा टेम्परेचर बीच में चेंज हो रहा है, तो इट इज गोइंग टू स्विच बिटवीन द कर्व्स एज वेल. ठीक है. तो हीट ट्रीटमेंट वाली चीज को आप मॉडल भी कर सकते हैं अपने मटेरियल के लिए. तो इट इज पॉसिबल कि मुझे पता है कि मेरा मटेरियल इन सारे कर्व्स को फॉलो कर सकते हैं मेरा पार्ट, तो अगर मैं उसकी हीट ट्रीटमेंट करूं तो उसके बाद उसका क्या, उसके अंदर लेट्स से रेजिडुअल स्ट्रेसेस कितने रह जाएंगे, या फिर अगर मैं उसको लेट्स से मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसकी एनीलिंग कर रहा हूँ, तो दोस थिंग्स कैन बी मॉडल, बट फॉर दैट सिंपल इलास्टोप्लास्टिसिटी से काम नहीं चलेगा. वी विल नीड टू टॉक अबाउट
some sort of relaxation models जो कि रिलीव कर सकें, तो विस्कोप्लास्टिसिटी और उस टाइप के मॉडल्स हमें देखने पड़ेंगे। यूजुअली हाई टेम्परेचर्स के ऊपर आपका रेट डिपेंडेंसी भी आ जाती है, तो दो तरह के प्लास्टिसिटी मॉडल्स यूजुअली FEA के अंदर यूज हो रहे होते हैं, रेट डिपेंडेंट भी होते हैं, रेट इंडिपेंडेंट भी होते हैं। तो सिंपल प्लास्टिसिटी दैट वी टॉक अबाउट, इट इज द सेम थिंग जैसे हम एक क्वाजी स्टैटिक एनालिसिस जो कर रहे होते हैं टेंसाइल टेस्टिंग मशीन के ऊपर बहुत स्लो स्ट्रेन के साथ, तो दैट इज रेट इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर आपका रेट सिग्निफिकेंटली बढ़ जाएगा तो आपको विस्कोप्लास्टिसिटी इफेक्ट्स कंसीडर करना पड़ता है, तो उसके अलग मॉडल। तो ये जो बाइलिनियर हमने अभी मॉडल देखा था, दिस इज सिंपल रेट इंडिपेंडेंट प्लास्टिसिटी का मॉडल है, बट विल टॉक अबाउट दिस थिंग एक दो हफ्ते के बाद, जिसमें मटेरियल्स को डिटेल में देखेंगे। अभी जस्ट ट्राइंग टू लुक एट कि कहाँ से आ सकती है नॉन लिनियरिटी। अच्छा, फिर अगर हम इलास्टोप्लास्टिक मटेरियल की बात कर रहे हैं तो देयर इज एनर्जी डिसिपेशन गोइंग ऑन, ये वही बात हमने की है। दिस कर्व दैट यू सी हियर, दिस इज नोन एज अ इलास्टिक परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल। परफेक्टली प्लास्टिक का मतलब ये कि इसका टेंजेंट मॉड्यूलस ET इज 0, which means once it starts to yield, it is going to deform uncontrollably. Okay, this is true for materials which are very close to their melting points. तो वो फ्लो की स्टेट पे आने वाले होते हैं ना, बिल्कुल, तो वहां पे ये चीज, वहां पे कर्व आपका बहुत स्लोप कम हो जाता है। तो these types of problems are very difficult to solve in FEA because यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस नहीं मिल रही। जैसे अगर आप नॉर्मल फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखें तो स्टिफनेस है ना, तो जैसे आप फोर्स अप्लाई करते हैं, द बॉडी डिफॉर्म्स, इट प्रोवाइड्स अ रेजिस्टेंस फोर्स बिकॉज ऑफ द स्टिफनेस ऑफ द मटेरियल, बट दिस जीरो स्लोप शोज कि इसकी स्टिफनेस कुछ भी नहीं है यहाँ। तो इफ यू जस्ट अप्लाई अ लिटिल बिट ऑफ फोर्स, इट इज गोइंग टू स्टार्ट डिफॉर्मिंग अ लॉट। तो यूजुअली हम अवॉइड करते हैं परफेक्टली प्लास्टिक मटेरियल्स को, तो थोड़ा सा हल्का सा स्लोप यहाँ पे दे देते हैं। इट कैन बी वेरी स्मॉल, लाइक 1 मेगापास्कल 2 मेगापास्कल का स्लोप दे दिया, ताकि वो कुछ उसको कंट्रोल मिल जाए ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल सॉल्यूशन। ये वाली जो एग्जांपल दी हुई है, दिस इज अ विस्कोइलास्टिक मटेरियल, अगेन वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर ऑन। दिस इज टाइम डिपेंडेंट, इसमें रिलैक्सेशन हो रही है। फॉर एग्जांपल, इफ यू leave a body at a certain stress level for a period of time, the stresses are going to relax over time, ठीक है। and this is again this can be temperature dependent। तो अगर आप लो टेम्परेचर पे कर रहे हैं, हो सकता है रिलैक्सेशन बहुत स्लो हो रही हो, बट अगर आप हाई टेम्परेचर पे कर रहे हो, दिस कैन इंक्रीज, द रेट कैन इंक्रीज। तो यू कैन प्रोबब्ली मॉडल समथिंग लाइक annealing यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ मॉडल, ठीक है। और भी जगहों पे हो सकते हैं, ये पॉलीमर्स में विस्कोइलास्टिक मटेरियल अप्लाई हो रहे होते हैं, एंड कहीं पे भी अगर बॉडी मतलब हाई टेम्परेचर ऑपरेट कर रही है, वहां पे भी अप्लाई हो सकते हैं। तो दिस वाज जस्ट बेसिक के मटेरियल नॉन लिनियरिटी किधर इंट्रोड्यूस होगी, दैट इज गोइंग टू शो अप इन द स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप, राइट। हमारी जो बाउंड्री कंडीशंस की नॉन लिनियरिटी है, दीज आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू मॉडल, ठीक है। ये मटेरियल नॉन लिनियरिटी इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू हैंडल, but these types of problems कि अब for example it could be a problem हो सकती है कि for example मेरे पास एक डाई है और मैं इसमें किसी प्लेट को जो है प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है, and what I want to do is I want to form this shape from this plate, ठीक है। तो इनिशियली क्या होगा, कि when you start pushing this plate down, initially इसका जो ये वाला पार्ट है सारा, this is not going to come in contact। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली सिर्फ ये वाला पार्ट कांटेक्ट में आएगा, this is going to come in contact here, this part is going to come in contact here। as soon as it hits this, it is going to stop moving। let's assume कि ये जो आपने ये जो पार्ट लिया हुआ है, this is rigid, इसको हम rigid assume कर रहे हैं, this is not going to deform at all। similarly ऊपर वाला जो press है, this is not going to deform at all, only this plate is going to deform। so as soon as it hits this surface, it is going to have a boundary condition applicable, initially नहीं। तो after some time, when it presses further down, this part is going to start turning here। तो होगा क्या, आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा चीज टर्न होना शुरू हो जाएगी आपके डाई के, ठीक है। and as you keep on pushing down, this thing is going to further come in contact। तो ये
बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो चीजें हो रही है। एक तो ये हो रही है कि लार्ज डिफॉर्मेशन भी है, क्योंकि चीजें, ये जो पार्ट है सारा, ये वाला जो रीजन है, दिस इज गोइंग टू रोटेट। ये जो पार्ट है इनिशियली ऐसे था, नाउ इट इज लाइक दिस, तो इट हैज रोटेटेड बाय फाइनाइट अमाउंट। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक नॉनलिनियरिटी आ गई। देन सिंस दिस इज हैविंग लार्ज स्ट्रेन्स, तो दिस इज, वी एक्सपेक्ट दिस टू बी फॉर्म प्लास्टिसिटी, तो मटेरियल नॉनलिनियरिटी भी आ गई। Plus now we also have a contact problem. So boundary conditions जो हैं, they are not fixed. They keep on evolving with the solution. तो जैसे जैसे आपका solution आगे जाते जा रहे हैं, नए points in contact आते जा रहे हैं, and the boundary condition keeps on changing. So this type of problem is known as a contact problem. आपकी नॉन लीनियर फोर्स बाउंड्री कंडीशन भी हो सकती है, ये हमने बात की भी ऑलरेडी, कि फॉलोअर फोर्सेस होती हैं, कि फोर्सेस instead of staying aligned with an axis system, they are aligned with the geometry of the body. The force is always perpendicular to the body, and the body deforms by a finite amount. तो आपकी force itself rotate हो रही है। तो initially force purely y axis में थी, after some time there is a component of the force in the x direction as well. So this is again a source of nonlinearity which we need to deal with. ठीक है, probably अभी हमारी सेशन जो है ये एंड होने वाला होगा, तो let us rejoin and we can continue from there. सर वैसे मेरे पास एक पॉपअप आया था कि आपने अपना शायद जूम जो अपडेट करा है, तो अनलिमिटेड मीटिंग टाइम है ये वाला। अच्छा, वो मेरे पास नहीं शो हुआ। अच्छा, चले, एनीवेज जूम मैंने अभी जी इंस्टॉल किया था, वो मेरे पास वो पॉपअप एटलीस्ट, क्योंकि शायद वो खुला हुआ है, प्रेजेंटेशन खुली हुई है, तो वो शायद सामने नहीं आया। एनीवेज चले, ठीक है। तो राइट, अभी हमने व्हाट वी हैव सेड बिफोर कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की नॉनलिनियरिटीज हो सकती हैं, राइट। एंड इवेंचुअली में करना क्या होता है, हमें इक्विलिब्रियम इक्वेशन सॉल्व करनी थी, राइट। तो हमने इक्विलिब्रियम इक्वेशन देखी हुई है कि किस तरीके से बन रही है, हम उसको वीक फॉर्म से फॉर्म करते हैं, इवेंचुअली वी अराइव एट अ फॉर्म व्हिच इज लाइक दिस लिनियर प्रॉब्लम, राइट। बट वी हैव सेड बिफोर इन दिस टॉपिक कि हमारे पास जो रिलेशनशिप है KD, जो रिलेशनशिप है, दिस रिलेशनशिप इज ओनली वैलिड फॉर लिनियर प्रॉब्लम्स। इन जनरल दिस इज गोइंग टू बी some function of displacement, ठीक है। This is not going to be separable into matrix times vector, क्योंकि अगर matrix times vector में आप divide कर सकते हैं, it becomes a linear problem. So we have just a function of D here, and this is our stress strain relationship basically, जो हमारे पास left hand side आ रही है, और right hand side में हमारे loads हैं। तो this is our equivalent to KD equals to F for a non-linear problem. तो लेफ्ट हैंड साइड पे इंटरनल फोर्सेस हैं और राइट हैंड साइड पे एक्सटर्नल फोर्सेस। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस आर शोइंग अप बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रेसेस, एंड द लोड्स आर शोइंग अप बिकॉज ऑफ आवर बॉडी फोर्सेस एंड सरफेस फोर्सेस एंड नोडल फोर्सेस। और नाउ वी हैव एन आइडिया कि वो क्या होती हैं, बिकॉज वी हैव डेल्ट विद देम इन द लीनियर एनालिसिस पार्ट। What has changed is the left hand side. Left hand side अब हमारी चेंज हुई। अब हम लोग currently we are not able to convert this problem into KD. We need to somehow find a way we can still apply this sort of approach to nonlinear problems, and we'll talk about how to do that in the next few slides. ठीक, अब हमारे पास जो दो तरह की नॉनलिनियरिटीज के ग्रुप्स बन रहे हैं, एक हमारे पास बन रहा है मटेरियल एंड ज्योमेट्रिक नॉनलिनियरिटीज, ठीक है, जो डोमेन के अंदर अपीयर हो रही हैं, कि आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप और स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट रिलेशनशिप चेंज हो रही हैं। और आपकी जो बाउंड्री कंडीशन वाली दोनों चीजें कि डिस्प्लेसमेंट या फोर्स बाउंड्री कंडीशन, दीज आर अपीयरिंग ऑन द बाउंड्रीज ऑफ द बॉडी, ठीक है, दो तरह की चीजें, एंड बोथ ऑफ देम आर गोइंग टू अफेक्ट आवर रिलेशनशिप। इसमें जो हमारी बाउंड्री कंडीशन वाली नॉनलिनियरिटीज हैं, कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम्स एंड फॉलोअर फोर्सेस, दीज आर मच मोर डिफिकल्ट टू हैंडल एंड कन्वर्ज देन ज्योमेट्रिक नॉनलिनियरिटी एंड मटेरियल नॉनलिनियरिटी। इधर भी मसला आ सकता है if you have not set up the problem correctly, but contact problems for example are going to be much more difficult to converge than material nonlinearity, let's say plasticity problem, and we'll see some plasticity problem in this lecture, ठीक है, हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व। Before we do that, what I want to do is I want to just discuss the approaches that we can use to solve these problems, और उसके कुछ
जो सिंपल स्प्रिंग्स की assumption करके solutions को देखना चाह रहे हैं कि कैसे non-linear problems को FEA सॉफ्टवेयर के अंदर solve किया जाएगा. So for that what we'll do is we'll talk about a simple system. हमारे पास 2 springs हैं, तो we can now actually formulate the problem of this. अगर ये linear system हो, we can formulate this. ठीक है, तो एक spring का मैं stiffness matrix K minus K minus K K बन रहा है, दूसरे का K2 minus K2 minus K2 K2 बन रहा है. 2 springs are in series. You can add them, make a 3x3 system. आपके पास resultant global matrix आ जाएगा. But now what we have is our stiffnesses are no longer constant. They are dependent on the solution. K1 is dependent on U and K2 is dependent on U. ठीक. अब हम इसको अगर इनकी इक्वेशंस को फॉर्म करें तो the equations can be formed by just making F equals to KD और K को अगर हम K1 और K2 को ग्लोबल मैट्रिक्स जो बना रहे हैं उसके अंदर K1 K2 की वैल्यूज लिख के and we multiply the displacement vector with our non-linear K vector, we end up with these 2 equations. ठीक है, तो not the point to solve here. अभी हमारा point कुछ और है, तो let's just get to that point. हमारे पास 2 equation form हो रही हैं. These are the 2 equilibrium equation of this system. ठीक. In order to find the correct solution U1 and U2, we have to solve both of these equations simultaneously. तो यहाँ पे जो काम हुआ यहाँ पे ये दोनों equations plot हुआ. P1 और P2 की जो हर एक पूरा जो surface plot हुआ है U1 और U2 के लिए. So अगर U1 और U2 change हो रहा है तो what is the value of P1 and P2? And what we actually want is we want to have a value of 0 for this. तो अगर मैं इस 100 को भी इधर उठा के ले आऊं तो it will become -100 and both of these equations will be equal to 0. तो जो यहाँ पे contours plot हुए हैं, these dark black lines, these are the lines. ये पहला वाला curve P1 के लिए, दूसरा वाला P2 के लिए. तो this line is showing all the combinations of U1 and U2 जो के पहली इक्वेशन को सेटिस्फाई कर. Similarly, U1 और U2 के वो कॉम्बिनेशन जो दूसरी इक्वेशन सेटिस्फाई करें, they are also shown in this one. Simultaneously सॉल्व करने का क्या मतलब होगा, वो सॉल्यूशंस जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो we can probably just put those solutions here and we can find out जहां पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है. तो it is, I'm just assuming कि हाइट सेम है, but it is not necessary कि दोनों की हाइट सेम हो सकता है, सिर्फ एक ही पॉइंट पे आ रहा हो कन्वर्ज हो रहा. But I'm just saying कि let's say this contour and this line are on the same plane, so मैंने उनको just to make a point मैंने कह दिया यहाँ पे ड्रॉ कर. अब there are 4 combinations here. If what I assumed it is true, then there are 4 combinations of U1 and U2 which satisfy this thing. ठीक, mostly ऐसा नहीं होगा, mostly you will get only one, but it is possible that there are multiple solutions to your non-linear problem. ठीक है, स्ट्रक्चर में नॉर्मली ऐसा होता नहीं, but it is possible. There is also a possibility कि आपका सिस्टम सॉल्व ही नहीं हो रहा for a certain problem. So there a solution might exist, multiple solutions may exist. There is a possibility that no solution exists. ठीक है, तो in order to solve the system, we have to find a solution which satisfies all our equations, right? So that's the idea. अब ये solve कैसे करेंगे, that we need to look at. Linear problems हम कैसे solve करते हैं? Linear problems we get KD equals to F. We can just take K to the other side. K inverse times F करते हैं, we can find out our D. It's not that difficult. अगर मुझे forces पता है, K inverse times F करें, you can find out your displacement solutions, and that's very straightforward. अगर मेरे पास 2 different displacements होंगी तो I can solve for 2 different displacements, तो मेरे पास दोनों के different reaction forces आ जाएंगी. This is just to highlight कि मेरे पास linear system है, इसका कोई ऐसा यहाँ पे point. But अगर non-linear problem है, then I can't do that. तो अगर यहाँ पे जो point हमने important में किया वो ये किया कि अगर मेरे पास D1 और D2 है, then the reaction forces are the sum of the individual reaction forces of the 2 displacement solutions. So let's say मेरे पास पीछे वाली प्रॉब्लम में U1 U2 थे, तो U1 U2 एक दफा 1 और 3 आए, तो उससे मेरे पास F1 और F2 आ गया. फिर एक दफा मेरे पास U1 और U2 जो है वो
2 और 4 आए, उससे मेरे पास कोई और F1 F2 आ गया, तो when my U1 and U2 are 3 and 7, which means this first solution and second solution the sum, then F1 and F2 are also going to be the sum of the first two solutions because of the superposition principle. Non-linear solutions में ऐसा नहीं होता. Non-linear solution में if let's say कि अगर मेरे पास D13 का कोई solution निकाल के आ रहा है और मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरा, तो 2 6 कर दूं, तो जो इनिशियल फोर्स यहाँ पे मेरे पास निकल के आएगी इट विल आल्सो बी ट्वाइस. तो ये स्टेटमेंट ट्रू है. अगर मैं अल्फा डी कर दूंगा तो मैं सॉल्यूशन भी अल्फा एफ होगा. बट इन अ नॉन-लीनियर प्रॉब्लम दिस थिंग इज नॉट ट्रू बिकॉज मेरी रिलेशनशिप लीनियर नहीं है. अगर मेरे पास यहाँ पे डी है, मेरे पास स्लोप कांस्टेंट है, मैं 2d करूंगा, आई कैन एस्टिमेट दिस पॉइंट फ्रॉम द सेम पॉइंट डी. इससे मैं इसको सेकंड पॉइंट को एस्टिमेट कर सकता हूँ. But if my curve is non-linear, then knowing this, I can't estimate this. Okay, I need to somehow follow this path. I need to follow this path and get to this point. मैं इस point से अगर इसको estimate करने की कोशिश करूँगा, I might, let's say मैं इससे इसको estimate कर रहा हूँ, मुझे slope पता है, I use this slope for this displacement, I get a force which is this much. ठीक है, मुझे स्लोप पता था, मुझे ये चीज पता थी, मैंने ये फोर्स एस्टिमेट की, मेरे पास इतना एरर आ गया. दिस इज माय एरर. आई नीड टू समहाउ मिनिमाइज दिस एरर. ठीक, तो उसका तरीकेकार ये होता है कि यू कैन यूज एन इंक्रीमेंटल सॉल्यूशन प्रोसीजर. तो इंस्टेड ऑफ जस्ट अप्लाइंग द एंटायर फोर्स एट वंस, वी कैन अप्लाई फोर्स और डिस्प्लेसमेंट स्मॉल स्टेप एट अ टाइम. तो उसके लिए दो बातें. एक बात ये है कि हमें नॉन-लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है वो देखना है, और उसके बाद इंक्रीमेंटल सॉल्यूशन किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो देखना है. ठीक, तो नॉन-लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए द मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज्ड इन एफईएस सॉफ्टवेयर्स इज द न्यूटन-रैप्सन मेथड. कॉम्सोल के अंदर भी ये इंप्लीमेंट हो रहा है और इसकी एक मॉडिफाइड फॉर्म भी यूज हो रही है. वो आई विल शो यू इन कॉम्सोल वेयर इट इज एंड वी विल प्रोसीड फ्रॉम देयर. बट अभी अगर न्यूटन-रैप्सन मेथड को देखें तो ये होता क्या है, इट इज सिंपली कि अगर मैं किसी सॉल्यूशन से, लेट्स से मुझे सॉल्यूशन एक आइटरेशन में पता है, लेट्स से कि मुझे ith सॉल्यूशन पता है. नाउ दिस I इज नॉट नोट्स, दिस इज आइटरेशंस. तो लेट्स से कि if I is 0, this is my initial guess, so D0 would be my initial guess, and based on that I am going to predict the first iteration results. ठीक, उसका तरीकेकार क्या होगा? उसका तरीकेकार ये होगा कि मैं अपनी इक्वेशन को लीनियराइज करूंगा सबसे पहले. तो मुझे पता है कि मेरे पास, और मैं उसको लीनियराइज करने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, सो लेट्स से इफ आई हैव अ फंक्शन ऑफ x, तो व्हाट आई एम गोइंग टू से इज कि मैं किसी भी और वैल्यू के ऊपर, इस x से पिछली वैल्यू है, ठीक है, उसके ऊपर फंक्शन को वैल्यूएट करूंगा, इसी वैल्यू के ऊपर उसका स्लोप कैलकुलेट करूंगा और उसको मल्टीप्लाई करा दूंगा x माइनस x नॉट के साथ. एंड दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट माय न्यू वैल्यू ऑफ f. एंड देयर इज गोइंग टू बी एरर इन दिस. क्यों? क्योंकि ये जो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, दिस इज अ स्लोप एट दिस पॉइंट. तो इस पॉइंट पे जो स्लोप है इसको हम KTI कह रहे हैं, कि स्लोप के द टेंजेंट स्टिफनेस फॉर द ith iteration. This can't predict this particular solution. अगर मैं DI से डायरेक्टली ये वाली वैल्यू प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूंगा, I am going to get a solution somewhere here, which is completely wrong. ठीक, तो हम करते क्या है, we can keep on doing the iterations. तो हमने सबसे पहली iteration की, हमने DI से DI+1 प्रेडिक्ट किया, there is going to be an error here. We are going to utilize this error and we are going to use the new slope here, and based on this error we are going to predict a new value here. And once we get to this point, we'll use another slope and this error, and we're going to predict the next value, and from this we can predict the next value, and so the solution goes on like this. So मुझे यहाँ तक पहुँचना है, so I can start here, I can get back here, and then go like this, and then go like this, and I can arrive at the solution. तो हर दफा एक नई iteration में मैं नया slope calculate करता हूँ at the new point,
and from the new point I can predict another value, and every time we expect अगर मेरा initial guess ठीक है तो मेरा जो error है solution वो it will keep on going down. ठीक, तो हम प्रॉब्लम को किस तरीके से फॉर्मुलेट कर रहे हैं? सब the first thing we are doing is we are linearizing the problem. तो मेरे जो reactions हैं at the new increment they are equal to the old increment plus the linearized tangent stiffness times delta d. Delta d is the difference between these two incremental solutions. जो मेरे पास दो incremental solutions आ रहे हैं वो, इसमें हमने जो एक चीज करनी है वो ये हमें देखनी है. Let me just get back to one thing. ये वाली equation. अब ये मेरी जो equation है, this is two. This is equation which is two. अगर मेरे पास ये कर्व है and I'm at this point, इस पॉइंट के ऊपर जो भी मेरा सॉल्यूशन आ रहा है इसके अगेंस्ट मेरे पास कोई ना कोई इंटरनल सॉल्यूशन, इंटरनल फोर्सेस आ रहे हैं. These are my internal stress forces. ठीक है, and these are going to be equal to my applied forces, my loads. So this is the state of equilibrium. ठीक है, अगर मेरा सिस्टम मैंने गलत सॉल्यूशन निकाला, लेट्स से इंस्टेड ऑफ प्रेडिक्टिंग दिस आई प्रेडिक्ट अ डी व्हिच इज हियर, तो P D, let's say this is D1 is not going to be equal to F. कोई ना कोई एरर होगा उसके. तो this is what we are going to use to correct our solution. So what we do is कि हम सबसे पहले ये काम करते हैं, हम कहते हैं कि हमें जो फाइनल सॉल्यूशन है ना, it needs to be equal to the applied forces. तो मेरे पास जो रिएक्शन फोर्सेस है they need to be equal to the applied forces. इनमें अपने इस नेक्स्ट सॉल्यूशन को आई एम अज्यूमिंग इट टू बी इक्वल टू माय ओल्ड सॉल्यूशन प्लस KT टाइम्स डेल्टा D. ठीक है, यहां तक बात हो गई. अब दिस इज द सॉल्यूशन एट द प्रीवियस आइटरेशन. अब इस प्रीवियस आइटरेशन के सॉल्यूशन को इफ आई टेक इट टू द अदर साइड आई कैन फाइंड आउट एन अ रेजिडुअल फोर्स. दिस इज द फोर्स व्हिच इज एक्चुअली नॉट बैलेंस्ड. तो अगर मैं अज्यूम कर रहा हूं कि मैं सॉल्यूशन को स्टार्ट कर रहा हूं बिल्कुल, तो मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, इट इज समथिंग लाइक दिस. applied force is F. The body, I'm just starting my solution, so this body is currently undeformed. मेरे पास कोई रिएक्शंस नहीं है. तो जब मैं इस चीज को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इनिशियली PDI, मैंने कहा कि मेरा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट जो है D0 is 0 एट द इनिशियल. मेरे पास D0 0 है, तो मेरे पास कोई रिएक्शन फोर्सेस नहीं है, तो मेरे पास पूरी की पूरी फोर्स एक अनबैलेंस फोर्स है. इस अनबैलेंस फोर्स के साथ आई कैन टेक दिस KT टू द अदर साइड, आई कैन फाइंड आउट डेल्टा D कि मुझे इस अनबैलेंस को करेक्ट करने के लिए कितनी डिस्प्लेसमेंट ऐड करनी चाहिए इन माय सॉल्यूशन, सो आई कैन प्रेडिक्ट बेटर सॉल्यूशंस. ठीक है, और हम इसको कैसे प्रेडिक्ट कर रहे हैं? वी आर प्रेडिक्टिंग यूजिंग द लीनियराइज्ड टेंजेंट स्टिफनेस. तो इनिशियल पॉइंट के ऊपर जो भी स्टिफनेस थी उसकी बेस पे हमने एक सॉल्यूशन प्रेडिक्ट कर दिया. जो भी हमारे पास डेल्टा D प्रेडिक्ट हुआ उसकी बेस पे आई हैव अपडेटेड माय न्यू सॉल्यूशन एंड वी रिपीट अवर सॉल्यूशन. तो फॉर एग्जांपल मैंने I equals to 0 से I equals to 1 प्रेडिक्ट किया, एंड देन I equals to 1 से I equals to 2 प्रेडिक्ट किया. तो दिस लेट्स से कि दिस वाज I equals to 0, यहां से मैंने स्टार्ट किया था, एंड I predicted this. मैंने इसको जो है वो I'll start here. ठीक है, तो this is my curve. बल्कि इसको like this, ठीक है ना. तो इनिशियली मेरे पास जो था कर्व यहां से स्टार्ट हो रहा है. दिस इज माय अप्लाइड फोर्स F. मैंने इनिशियली यहां से स्लोप लिया अपना, तो मेरा स्लोप क्या बनेगा? माय स्लोप इज गोइंग टू बी E एंड दिस इज माय स्लोप. ठीक, मैंने सॉल्यूशन इक्वेशन क्या यूज करनी है? KT टाइम्स डेल्टा D इक्वल्स टू F माइनस PD, एंड दिस इज गोइंग टू बी द ith इंक्रीमेंट. ठीक है, तो एट I इक्वल्स टू 0 एंड दिस इज आल्सो I, KT 0 times delta D 0 equals to F minus PD of 0, and I'm saying initial solution 0, there's just F. So I can predict an initial correction to my displacement, which is going to be KT 0 का inverse times F. ठीक है, इसकी बेस पे what I'm going to get, ये मेरा solution, I'm going to get
a D1 here and this is going to be my delta D0. ठीक है, अब यहां पे मेरी पहली आइटरेशन कंप्लीट हो गई, तो आई गो फॉर i इक्वल्स टू 1. I, अच्छा यहाँ पे मैंने क्या किया, आई एम सेइंग D1 is equals to D0 plus delta D0. And next time around, I am going to repeat the exercise. So I am going to calculate my f minus PD1. अब मेरा PD1 कितना है? This is my PD1. Sorry, this is my PD1 in reality. This is my applied force. This is my unbalanced. इसको कहते हैं residual force कह लें. इसमें residual force की ये वो force है जो कि unbalanced. इस पॉइंट के ऊपर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट, क्योंकि मुझे अपना मटेरियल मॉडल पता है तो आई कैन कैलकुलेट माय स्टिफनेस हियर एज वेल. तो इस पॉइंट के ऊपर आई एम गोइंग टू कैलकुलेट माय केटी अगेन एट i इक्वल्स टू 1 एंड आई एम गोइंग टू प्रेडिक्ट अ न्यू करेक्शन टू माय डिस्प्लेसमेंट. और इस करेक्शन से आई कैन प्रेडिक्ट अ न्यू सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम. तो KT1 का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाय माय रेजिडुअल फोर्स, लेट्स कॉल दिस RF. And from there, I can predict my D2, which is going to be D1 plus delta D1. And then I'm going to check my residual again, F minus P D2 में दोबारा check करूँ. अगर मेरा residual एक threshold से कम हो गया, then I'm going to assume my solution to be correct. अगर नहीं हुआ, then I'll resolve this thing. मैं दोबारा से नई stiffness calculate करूँगा, नए stiffness से residual को multiply, inverse of stiffness से residual को multiply करके नई correction to displacement निकालूंगा, and I'll keep on repeating this. तो एक iterative solution हमें करना पड़ेगा, ठीक है? And I can just keep on moving like this. तो हर दफा एक residual आता है, उसकी बेस पे हम नया solution predict करते हैं, which is this one. इस solution के ऊपर हम नया residual calculate करते हैं, नई stiffness calculate करते हैं, we can predict a new solution. And once my solution is converged, we can stop the calculations. Okay, so this is the Newton-Raphson method which is used in all of FEA software. सब में यही use होता है. इसकी कुछ modified forms we can talk about them. Newton-Raphson method is the fastest to converge. ठीक है, अगर आप number of iterations की terms से देखें, तो there are modified forms to this which are computationally less expensive, but this Newton-Raphson method is very अगर नंबर ऑफ आइटरेशंस की तरह बात करें, हो सकता है टोटल टाइम न्यूटन रैप्सन में ज्यादा लगे, बट नंबर ऑफ आइटरेशंस की तरह न्यूटन रैप्सन विल बी द फास्टेस्ट. इसको कहते हैं स्क्वायर सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस होती है. सेकंड ऑर्डर कन्वर्जेंस मतलब ये है कि जैसे जैसे आप सॉल्यूशन के करीब पहुंचते जाते हैं, आपका कर्व क्वाड्रेटिक तौर पे ड्रॉप हो रहा होता है. मतलब कि आपका कर्व जो है वो हर दफा जो अमाउंट ऑफ द एरर दैट इज रिड्यूसिंग एवरी सिंगल टाइम इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग. ठीक है, तो आप इनिशियली शायद थोड़ा आप स्लोली अपने सॉल्यूशन की तरफ जा रहे हो, आपका रेजिडुअल कम जा रहा हो, जैसे जैसे आप नंबर ऑफ आइटरेशन बढ़ाते जाते हैं आपका रेट ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ता जाता है, जैसे जैसे नंबर ऑफ आइटरेशन बढ़ती जाती है. अब आपकी जो टेंजेंट स्टिफनेस है, इट इज नॉट कांस्टेंट इन दिस मेथड, इट हैज टू बी कैलकुलेटेड एट एवरी आइटरेशन. हर दफा टेंजेंट स्टिफनेस की हेल्प से वी आर सॉल्विंग एन इंक्रीमेंटल डिस्प्लेसमेंट. दिस कैन बी थॉट ऑफ एज अ करेक्शन टू योर सॉल्यूशन. ठीक है, इट्स नॉट एन इंक्रीमेंट डायरेक्टली, इट्स एन आइटरेटिव सॉल्यूशन, और हर दफा हम एक करेक्शन ऐड कर रहे हैं अपने सॉल्यूशन में. तो इट्स अ करेक्शन फैक्टर टू माय सॉल्यूशन. ठीक है, हर दफा हम एक करेक्शन उसमें प्रोड्यूस करते हैं कि हमारा एरर कम हो जाए. एंड वी कीप ऑन कैलकुलेटिंग अवर रेजिडुअल फोर्सेस. रेजिडुअल फोर्सेस ये है कि इक्विलिब्रियम से आउट कितनी फोर्सेस हैं. ठीक है, once this residual becomes zero, my system will come into equilibrium and I'll say कि मेरा system solve हो गया. ठीक, अब convergence कैसे check करते हैं? There are two ways to do it mainly. पहला ये है कि मेरा residual एक certain threshold से कम हो जाए, तो residual को हम normalize करते हैं अपने forces के साथ. ठीक है, one जो यहाँ पे add कराया हुआ है इसलिए कराया हुआ है कि अगर लेट्स से कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है सिस्टम में, तो दिस शुड नॉट डिवाइड बाय जीरो. अदरवाइज हम बेसिकली रेजिडुअल्स को नॉर्मलाइज करना चाह रहे हैं अपने फोर्सेस के साथ. सेम थिंग एक और चीज हो सकती है कि मेरा जो डेल्टा टी का करेक्शन आ रहा है हर दफा, डेल्टा डी का, इसको यहाँ पे डेल्टा यू लिखा हुआ है, इफ दिस थिंग इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द इनिशियल इंक्रीमेंट. तो लेट्स से पहली दफा मैंने जब इंक्रीमेंट जनरेट किया तो मेरे पास इंक्रीमेंट निकल के आया 0.5 इंचेस में, और पांचवें इटरेशन के बाद इट इज 1 एक्सपोनेंशियल -5 and it is not changing that much, then we can also stop.
this will still have residual forces. तो इसमें equilibrium satisfy नहीं हुआ है, but what has happened is कि हम ये बता रहे हैं in the current settings it is unlikely that our algorithm is going to solve our model, and it can happen. कई दफा वो solve नहीं कर पा रहा होता, the algorithm stops and it says कि you have to change the parameters to make sure कि आपका residual zero का approach कर सके, right? एक छोटी सी प्रॉब्लम है, this is just for our understanding, you don't need to solve this thing. इसका अच्छा, by the way, in the textbook अगर आप chapter 2 के अंदर जाएं, इन प्रॉब्लम्स के आपको MATLAB के कोड्स मिल जाएंगे which you can just go and run and test it out. तो नॉन-लीनियर आपके पास न्यूटन-रैफसन मेथड का एक MATLAB का कोड बना हुआ है जो कि सिंपल मैट्रिक्स इक्वेशन को सॉल्व कर रहा है. So you can check that out, run that directly run the code and see what are the steps you are following. Instead of just doing it by hand, you can go and have a look at that. तो हमने क्या किया हुआ, हमने कहा कि हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, ठीक है? तो हमारे पास ये फोर्स वेक्टर जो है 3 9 और मेरे पास इंटरनल फोर्सेस आर डिफाइंड एज अ फंक्शन ऑफ माय two displacements d1 and d2. Equation 1 is d1 plus d2 and equation 2 is d1 square plus d2 square. So second equation non-linear, first one is linear. I am assuming an initial displacement of 1 and 5. कोई units नहीं है, this is just a mathematical problem. And so my initial internal forces come out to be 6 and 26. ठीक है? तो we can see that internal forces और external forces में unbalance है. So we will need to apply a non-linear solution procedure to solve this problem. पहला step क्या होता है कि आप tangent stiffness calculate करते हैं. Tangent stiffness is just the derivative with respect to the displacements. So it's a Jacobian. जैसे हम Jacobian देखते थे, किसी भी function का Jacobian का मतलब ये होता है उसके जितने भी basic parameters होते हैं उनकी base पे derivative लेते रहते हैं, उसको matrix form कर लेते हैं. तो हमारे पास d1 और d2 है, तो हमने d1 और d2 का पहले first equation का derivative लिया. With respect to d1 it becomes 1. With respect to d2 it becomes 1. Similarly second equation का becomes 2d1 and second term becomes 2d2. ठीक है, kt आ गया. हमने रेजिडुअल भी कैलकुलेट कर लिया, f minus p at initial solution. ठीक है. Then what we can do is we can multiply kt times the correction to my displacements and set it equal to the residual solution. अब मैं इस kt को I can take it to the side by taking inverse, multiply with the residual forces, and I can calculate the corrections to my displacement. I can add the corrections to my original solution and I can predict the next version of my displacement solution. So मेरी next iteration का solution निकल के आ गया. So at the end of the first iteration, I get some displacements, and if I calculate my residuals, I see that my residuals have reduced. पहले -3 और -17 थे, अब 0 और -4.53 वाले. ठीक है. Now what to do now? ठीक है, अब ये चीज तो हो गई. I can keep on going with this, so I can do a second iteration, I can do a third iteration. Second iteration मुझे क्या करना पड़ेगा? I will need to use the same kt and plug in the new solutions d1 and d2 in it. तो मैं जब d1 और d2 इसके अंदर plug in करूंगा, I'll get the kt value at the second iteration. If I do that, my second iteration kt matrix will be different from the first one. इस kt को use करके I'll predict the new corrections to my delta d. Residual forces भी change हो गई, तो नई corrections आई, उनको iteration 1 के solution में add किया, iteration 2 का solution निकल के आ गया. Residual forces check किए, residual forces have reduced further. अच्छा, interestingly you can see that my first equation is satisfied every time. और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि first equation is linear. The first equation is satisfied at the end of the first iteration and at the end of the second iteration. जो प्रॉब्लम कर रहा है वो सेकंड इक्वेशन कर रही है, जो नॉन लीनियर पार्ट होगा वो प्रॉब्लम करेगा. क्यों? क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन का जो हमने यहाँ पे स्लोप निकाला है, this is since it's linear, this reflects this equation perfectly. तो अगर आपको एक दफा आपने स्लोप निकाल लिया है, it is going to give you the correct result every time. पहली इक्वेशन हर दफा सेटिस्फाई होगी, मसला दूसरी इक्वेशन में आ रहा है. तो दूसरी इक्वेशन को निकालने के लिए we are going to keep on solving until we reduce a residual in the second equation as well. सही. तो इससे हमने खैर अपना रेजिडुअल प्रेडिक्ट किया. We are saying कि अभी भी ठीक नहीं है, तो let's go on. तो हमने थर्ड आइटरेशन में भी सेम काम किया, दोबारा kt किया,
उससे दोबारा नई करेक्शन प्रोड्यूस की, नया सॉल्यूशन निकाला, रेजिडुअल देखा, रेजिडुअल हैज फर्दर रिड्यूस्ड, and we can then do a fourth iteration and we find out that in this particular case my residual is actually becoming zero. It is possible कि आपका solution का residual zero नहीं हो, बहुत छोटा हो जाए, usually 10 to the power -4, 10 to the power -5 की setting रखते हैं, -4 usually रख लेते हैं, and if it reduces from that we say कि my solution is now converged. ठीक, तो अभी इस particular example के अंदर we get an exact solution. तो हमने चौथी आइटरेशन के एंड पे जो हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आ रहा है डी का, दैट इज एन एग्जैक्ट सॉल्यूशन एट लीस्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, वी आर गुड. तो वी गेट जीरो रेजिडुअल्स एंड वी आर कन्वर्ज. तो अगर हम अपने रेजिडुअल्स को प्लॉट करें तो रेजिडुअल्स आर ड्रॉपिंग लाइक दिस. ठीक है, रेजिडुअल्स ड्रॉपिंग लाइक दिस, और हमारे पास जो रेजिडुअल की वैल्यू है इनिशियली इट वाज 17, देन बिकम 4, देन बिकम 0.016 एंड बिकम 0. सही. तो दिस इज जस्ट अ वे टू गेट द सॉल्यूशन. और आपके एफई के अंदर भी सेम काम हो रहा था बट ऑन अ मच लार्जर स्केल. आपके पास जो भी मटेरियल मॉडल है उसकी बेस में आपकी टेंजेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स प्रोड्यूस होगा. सही है. उससे आपकी डिस्प्लेसमेंट इनिशियली लेट्स से आप अनडिफॉर्म्ड अज्यूम कर रहे हैं, उसकी बेस में कोई पहली प्रेडिक्शन प्रोड्यूस होगी डिस्प्लेसमेंट की, देन सेकंड, देन थर्ड एंड वी कीप ऑन गोइंग. सही है, जब तक आपको करेक्ट रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा. Sometimes it is possible that your nonlinear solution using Newton-Raphson method fails. It does not converge. और उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि अगर आपका जिस जगह पे आपकी solution iterate कर रहे हैं ना, अगर उस जगह पे आपका slope from positive to negative अगर change हो रहा है, then we can get an oscillating solution. तो होगा क्या कि I can get an initial estimate, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इनिशियल एस्टिमेट का. अगर मेरे पास इनिशियल एस्टिमेट गलत है देन इट इज पॉसिबल कि आप चीज को कभी भी सही प्रिडिक्ट नहीं कर पाए. तो फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर केस में मैंने अगर इनिशियल एस्टिमेट प्रोड्यूस किया, ठीक है, आई गेट अ रेजिडुअल, दिस वाज लेट्स से कि मेरे पास इनिशियल जो करेक्ट सॉल्यूशन है, या इस वाले केस को देख लेते हैं. मैंने इनिशियल सॉल्यूशन ये प्रिडिक्ट किया, this is the correct solution, I get a negative residual, so I from this slope I multiply the negative residual, I predict this new solution. ठीक है. इस solution में अब मेरे पास again I have now I have a positive slope, ठीक है, but this is now the slope. यहाँ से मैंने नया prediction की, I get something else, and what can happen is इधर दोबारा से मेरे पास एक error आ रहा है, तो I can keep on oscillating between these points. It is possible like this, or the same thing is shown here as well. अगर आपका initial estimate दूर है, from this point I can predict this point, फिर कोई residual आया, I predict a point which is further away, फिर कोई error आया, I predict a point which is still further away. तो हो क्या रहा है, instead of converging towards your actual solution, in some cases if your initial guess is not correct and your slope is changing signs, plus से negative की तरफ जा रहा है, then you can even get a diverging solution. तो आपका solution instead of converging it can start increasing errors, and normally FEA softwares इसको tackle करने की कोशिश करते हैं. There are different techniques. Damping apply करते हैं कि हर में change हो. There are some algorithms which work within the Newton-Raphson method जो कि convergence को improve कर रहे होते हैं, but sometimes it doesn't even work then. तो वो solution stop हो जाएगा. वो कहेगा कि there is something not correct with it, either change your mesh or try a different algorithm altogether to converge the result. ठीक है. One such algorithm is the modified Newton-Raphson method. तो जो modified Newton-Raphson method है, it has two conflicting काम हो रहे हैं इसके अंदर. एक काम ये हो रहा है कि हम initial जो KT assume कर रहे हैं ना, will keep the KT to be same. तो you see that initial slope ही use हो रहा है बार-बार. ठीक. तो मैंने यहाँ पे initially एक solution assume किया था, उससे मैंने एक solution predict किया using my slope. I calculate my residual. Instead of recalculating my residual here, मैं same slope को मैं बार-बार नए residual से multiply करके I keep on solving this. अब इससे हो क्या रहा है? इससे हो ये रहा है कि we can expect इस केस में कि मेरी number of iteration बढ़ जाएंगी.
क्यों? क्योंकि मैं हर दफा नया बेहतर स्कोप यूज नहीं कर रहा. बट वन थिंग दैट इज गोइंग टू हैपन इज कि मुझे हर दफा केटी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा और हर दफा केटी का इनवर्स कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा. नॉर्मली जो इनवर्स निकाल के जो मेरे पास जो लीनियर सिस्टम बन रहा है, मेरे पास लीनियर सिस्टम ये वाला बन, दिस इज अ लीनियर सिस्टम. लीनियर सिस्टम को यूज करने के लिए एफईए एलयू फैक्टराइजेशन यूज कर रहे होते हैं. एक लोअर डायगोनल से लोअर ट्राइंगल है, एक अपर ट्राइंगल है, इनको ब्रेक करते हैं एंड देन यू कैन सॉल्व योर सिस्टम. और क्योंकि हमारा एफईए का मैट्रिक्स स्पार्स होता है, यानी कि उसमें बहुत सारी बहुत सारे एलिमेंट, ज्यादातर एलिमेंट जीरो होते हैं, कुछ एलिमेंट नॉन जीरो होते हैं, तो इट्स अ स्पार्स मैट्रिक्स. उस पे एलयू फैक्टराइजेशन की टेक्निक यूज होती है बिकॉज दैट इज एफिशिएंट. बट इवन देन अगर आपका n by n का मैट्रिक्स है तो जो ऑर्डर बन रहा है कंपैरेटिवली इट इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ n2. यानी अगर मेरे पास 2 by 2 का सिस्टम है एंड इफ दैट टेक्स 4 सेकंड्स, तो 10 by 10 का सिस्टम विल टेक 100 सेकंड्स. सही. तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है आपका इनवर्स निकालने का जो भी तरीकेकार है दैट इज इंक्रीजिंग. सही. लेकिन अगर मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करा रहा हूं दो मैट्रिक्स को, k इनवर्स टाइम्स r कर रहा हूं, that increases by a factor of n. ठीक है. तो अगर मैं 100 by 100 का सिस्टम ले रहा हूं then this, और मैं 100 से 120 पे गया तो 100 से 120 पे गया तो this increases a lot because 100 squared और 120 squared में बहुत बड़ा गैप है. But this only increases by 20% because it's just a factor of n. इससे फर्क क्या पड़ा है? इससे फर्क क्या पड़ा है? This step is just the multiplication of k inverse r. तो अगर मुझे हर दफा k inverse r मल्टीप्लाई करना पड़ा है, that is less computationally intensive than recalculating my k inverse every time. मैं पहले k कैलकुलेट करूं by solving my material model जो itself iterative होता है. We'll get to that in the material nonlinearity topic. पहले मैं k कैलकुलेट करूं, फिर मैं k का इनवर्स कैलकुलेट करूं. That takes a much longer time than just multiplying k inverse r. तो modified Newton-Raphson method can actually be faster. ठीक है. It is possible that it is faster for large problems and it has an additional advantage. जो ये अगर आपके problem oscillate कर रहे हैं then sometimes it helps to try the modified Newton-Raphson method as well. क्योंकि इसमें slope बार-बार change हो रहा है तो उसमें constant slope होता है तो sometimes it can converge better in these types of problems. सही. अभी what we can do is we can try the same problem with this. तो इसमें I'll just talk about the key points. तो key points हमारे क्या है? एक हमारा key point है कि हमने KT जो कैलकुलेट किया था and we calculate KT using the initial estimates to be 1, 1, 2, 10. ठीक है ना. पहली iteration exactly same तरीके से solve हुई है. There is nothing different in the first iteration. तो मेरा पहला residual जो निकल के आया है it is the same as the complete Newton-Raphson method. और जो पहले आइटरेशन का डी का सॉल्यूशन निकल गया है इट इज आल्सो द सेम एज द प्रीवियस मेथड. सेम आया. डिफरेंस ये आया है कि अब मैंने जो केटी कैलकुलेट कर लिया और केटी का इनवर्स कैलकुलेट कर लिया, आई जस्ट कीप ऑन यूजिंग द सेम थिंग. तो आइटरेशन 2 के अंदर आई एम यूजिंग द सेम वैल्यू ऑफ केटी एंड आई एम प्रेडिक्टिंग द न्यू सॉल्यूशन एंड द न्यू रेसिड्यू. आइटरेशन 3 के अंदर अच्छा यहाँ पे नीचे हो गई. Iteration 3 के अंदर I'll do the same thing. Iteration 4 के अंदर I'll do the same thing. तो it is going to take much longer to actually get a solution which is converged for our case. ठीक है. तो हमने यहाँ पे कहा है कि maybe 1 exponential minus 3 का हमने बोला था. तो जब 0.001 से नीचे चले गए तो we said it is fine. सही. It takes more iteration to solve this, but it is very possible that this actually solves faster than complete Newton-Raphson method for large problems. क्योंकि इसमें आपको KT बार-बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ा. Then again, you have to try this. हो सकता है ये कन्वर्ज ही नहीं करे. अगर आपका मटेरियल बहुत ज्यादा नॉन लीनियर है तो हो सकता है modified Newton-Raphson method does not even converge. तो नॉन लीनियर प्रॉब्लम्स में ये प्रॉब्लम रहता है कि you can't just expect कि you do something and it will get a result. It is possible the first time you solve something it doesn't solve and then you have to try different. हो सकता है mesh का मसला हो तो हम mesh को improve करते हैं. हो सकता है हमें अपने सॉल्वर की सेटिंग्स के साथ प्ले करना पड़ रहा हो तो हम उनको चेंज करते हैं. इस वजह से विषय के
linear FEA can be treated as a black box. So you just learn the software, you apply it, कुछ basic guidelines होती हैं उनको follow करें, you get good results. But for nonlinear analysis, you need to know what is going on inside. You need to know your solvers. You need to know the importance of mesh. And without it, आपका हर दफा solution converge कराने में क्योंकि बार-बार ये काम करना पड़ा होता है, तो you need to know what is going on inside ताकि आप उसके साथ play कर सकें in order to get good conversions. ठीक है? Now we get to the most important point in nonlinear analysis, and this is applied every time, which is incremental solution. हमने जो अभी बात की थी, this was not incremental, this was iterative. आपने एक amount of force के लिए, force लेके load T1 के लिए आपने solution कराना था, तो you started with the Newton-Raphson method. You या फिर ये this looks like this is Newton-Raphson method. You apply the Newton-Raphson method and you get a solution using Newton-Raphson method for this force. What if I wanted to directly solve this P2 using this method? What would have happened? What would have happened if I initially कुछ predict करता? It would have arrived at this point, then came here, then come here, then come here, and it is possible that I might have solved it. It is possible that this is so different. Let's say कि आपका curve ऐसे change हो रहा है कि it is going on like this, and it is possible कि आप उसको converge ही नहीं कर पाए. And this happens a lot. Many times it happens कि जब आप directly अपना पूरा load एक साथ अपने FE के problem में apply कर देते हैं, तो problem converge नहीं होता. तो what we do is we apply our loads incrementally. हम एक part, हमें for example 10 kilonewton की force apply करनी है, तो मैं 1 kilonewton से शुरू करूँ. मैं 1 kilonewton solve करूँगा, तो this is, let's assume this is my 1 kilonewton solution. It's solved. Then from this I'll restart my iterations to solve for 2 kilonewtons. Then from 2 kilonewtons I'll solve for 3 kilonewtons. So incrementally apply करते हैं. फर्क क्या पड़ रहा है? फर्क पड़ रहा है D0. ठीक है ना? हमने यहाँ पे बात की थी कि जो आपका initial estimate होता है, this plays a very important role in your convergence. If your initial estimate is very off, you can get a diverging solution. तो अगर let's say ऐसे कि मैं यहाँ से यहाँ directly बजाय मैं कहता हूँ कि मैं इतनी force को पहले solve कर लेता हूँ, so maybe it can solve this point. Then from this I can solve this much force. Then I can solve this much force, and finally I can solve my final solution, whatever it might be. ठीक है? तो incrementally I can solve, and every time my D0 is going to change. So for example, पहले iteration में let's कि मैं undeformed state से शुरू कर रहा हूँ. दूसरी iteration में मैं 1 kilonewton का जो solution निकला है उसको मैं 0 iteration assume कर रहा हूँ. 2 kilonewton के लिए जो 3 kilonewton होगा उसमें 2 kilonewton के शुरू को 0 iteration assume कर रहा हूँ. तो every time my initial guess is improving. ठीक है? मैं डायरेक्टली अगर 10 kilonewton सॉल्व करूंगा, मेरा इनिशियल गेस हो सकता है कि 0 लेना पड़ रहा हो और उससे मेरा रिजल्ट कन्वर्ज नहीं हो. बट अगर मैं 9 kilonewton तो आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व कर चुका हूँ, 9 से 10 kilonewton में जाने के लिए मेरा जो इनिशियल गेस होगा, फिजिकली इट मेक सेंस कि 9 kilonewton से 10 kilonewton जाने के लिए जो मेरी डिफॉर्मेशन में वेरिएशन आएगी वो रिलेटिवली कम होगी कंपेयर टू अनडिफॉर्म्ड स्टेट. तो देयर इज बेटर चांस ऑफ कन्वर्जेंस. तो व्हाट वी डू इज वी सॉल्व आवर सिस्टम्स इंक्रीमेंटली, एंड many FEA softwares do this thing automatically. ठीक है? ये वाला काम ऑटोमेटिकली हो रहा होता है, हमें खुद से नहीं करना पड़ा होता. We can define our forces as a function of time, and usually time के terms में define कर रहे होते हैं. तो I can say कि my force, even if it is linear, मुझे इतनी force apply करनी थी, तो I say कि मुझे 10 सेकेंड में solution करना है. This is fictitious time. This is not a transient solution. So this is going to be what we call a quasi-static solution. Quasi-static solution means कि मेरी physics सारी static है, but मेरे loads time dependent है. ठीक है? तो मेरी physics सारी static है. तो what is going to do? It might go and try 5 seconds first and see whether it can solve it or not. So let's say उसने 5 seconds try किया, उससे solve नहीं हुआ, तो it failed. It will half that time. 2.5 सेकंड पे ट्राई करेगा. Let's say वो भी सॉल्व हो, फिर वो 1.25 पे ट्राई करेगा. तो 1.25 पे let's assume सॉल्व हो गया. Then 1.25 से it will try 2.5,
and then it will try to increase the time. Sometimes it will say okay ये कभी converge होता हुआ नजर आ रहा है, let's try a 3 second jump, तो it will try a 3 second jump, let's say वो भी converge हो गया, then it will try to go for a 4 second jump. ठीक है, तो वो खुद से कंट्रोल कर रहा होता है and you can even tell it कि initial guess कितना लेना है. तो हो सकता है आप उसको बोलेंगे let's start with an increment of 1 second initially, तो 1 second ट्राई करेगा, फिर आपने उसको बोला मैक्सिमम इंक्रीमेंट आपने ट्राई करना है 2 seconds का, उससे ज्यादा नहीं जाना. तो 1 सेकंड ट्राई किया इंक्रीमेंट, फिर 1 सेकंड ट्राई किया, फिर 2 सेकंड ट्राई किया, हो सकता है 2 सेकंड नहीं कन्वर्ज हुआ तो उसने उसको रिड्यूस कर दिया. इट विल कंट्रोल इट ऑटोमेटिकली. तो ऑटोमेटिक टाइम स्टेपिंग हो रही होती है एंड इट इज कंट्रोलिंग के यहां से लेके यहां तक पहुंचने के लिए उसको कितने बीच में इंक्रीमेंट देना है. इट इज हैंडलिंग दैट इटसेल्फ. ठीक है, बट यू कैन कंट्रोल इट योरसेल्फ एज वेल. मैं भी आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जिसमें हम इस इंक्रीमेंट को, लोड इंक्रीमेंट को खुद से कंट्रोल कर रहे हैं. कंसोल के अंदर यू कैन do the load increment thing directly as well, जो parametric studies है उनके थ्रू, और टाइम इंक्रीमेंट भी दिया सकता है. उसके लिए हमें टाइम डिपेंडेंट सॉल्वर लगाना पड़ता है और फोर्स को हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिफाइन करना पड़ता है. दैट कैन बी डन, वो सारा काम हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज जस्ट, अभी हम एक ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी हम कंसोल पे जाके एग्जांपल देखते हैं, विल सी व्हाट गोस ऑन. ठीक, लोड इंक्रीमेंट्स का हमारा एक बहुत अच्छा फायदा ये होता है कि हमें हिस्ट्री नजर आ रही है. तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि मैं एक मेरा प्लास्टिक मटेरियल है, उस पर मुझे लेट्स से 100 किलोन्यूटन की फोर्स अप्लाई करनी है और आई वांट टू सी कि क्या डिस्प्लेसमेंट आएगी. और लेट्स अज्यूम कि मैंने डायरेक्टली ये लोड अप्लाई किया एंड द सॉफ्टवेयर सॉल्व्स इट. तो उसने अपनी आइटरेशंस वगैरह की और उसे सॉल्व कर दिया. इट इज गोइंग टू गिव मी वन सॉल्यूशन एट दिस स्टेट ओनली. पीछे क्या हुआ है वो मुझे नहीं दे रहा, because it is solving it directly. अगर उसने डायरेक्टली एक स्टेप में सॉल्व भी कर दिया, उसने न्यूटन रैप्सन लगाया, कंप्लीट किया, उसने सॉल्व किया, हो गया. अगर मैं इंक्रीमेंटली सॉल्व करूं खुद से, आई फोर्स इट टू गो इंक्रीमेंटली, द एडवांटेज इज कि आई विल गेट द हिस्ट्री ऑफ द सॉल्यूशन एज वेल. मुझे डिफरेंट टाइम्स के ऊपर या डिफरेंट डिस्प्लेस लोड्स के ऊपर मुझे अपनी डिस्प्लेसमेंट नजर आ रही होगी, तो मुझे जो पाथ फॉलो हो रहा है वो भी नजर आ रहा होगा. हिस्ट्री ऑफ द रिस्पॉन्स विल बी ऑब्टेन्ड by doing incremental analysis, which is very very important. ठीक है, ये चीज हो गई. ये वाली बात हमने कर ली है कि लोड इंक्रीमेंट्स कमर्शियल सॉफ्टवेयर यूजेस टाइम. नॉर्मली टाइम यूज हो रहा होता है और वो फिक्टिशियस टाइम होता है, सूडो टाइम होता है. आप उसको टाइम बता रहे होते हैं कि स्टार्ट फॉर एग्जांपल 0 से करना है, एंड 100 सेकंड्स पे करना है, और उसको इंक्रीमेंट कभी खुद बता देते हैं, कभी वो उसको रेंज बता देते हैं कि कितने से कितने के बीच में रखो, जैसे ऑटोमेटिक टाइम स्टेप में लिखा हुआ है कि इनिशियल बता दे, मिनिमम बता दे, मैक्सिमम बता दे, और उसके बीच में वो लीनियर इंटरपोलेशन कर रहा होता है. तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने उसको बोला कि 0 से लेकर 10 सेकंड तक जाना है और ये 100 किलोन्यूटन तक फोर्स जानी है, तो इट इज गोइंग टू जस्ट स्केल इट लीनियरली. हर टाइम के ऊपर वो कोई ना कोई लीनियर उसको इंटरपोलेशन करके वैल्यू निकालेगा कितनी लोग होना चाहिए इंक्रीमेंटली उसको सॉल्व करना. ठीक है, ये चीज हो गई. देयर आर सम अदर टेक्निक्स व्हिच आर गोइंग ऑन. लाइन सर्च होती है, जो कि अगर कन्वर्जेंस नहीं हो रही, इट कैन ट्राई अदर्स incremental other iterative solutions within the Newton Raphson. There are other things which it can do. कुछ प्री कंडीशनिंग करनी होती है कि मैट्रिक्स को ऑर्डर चेंज करके देख लेते हैं, इस टाइप के कुछ काम सॉफ्टवेयर कर रहे होते हैं खुद से. बट अगेन दैट इज हमें ऊपर वी आर नॉट राइटिंग द कोड, सो वी नीड टू नो कौन सी टेक्निक यूज हो रही है, उनकी क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या सेटिंग्स अवेलेबल हैं, बट वी डोंट नीड टू एक्चुअली कोड इट आवरसेल्व्स. ठीक है, एक चीज जो हमारे पास एक दो स्लाइड से रह गई इसमें, वो ये है कि देयर आर टू वेज इट कैन एक्चुअली कंट्रोल जो इंक्रीमेंटल सॉल्यूशन है ना. आइदर इट कैन बी फोर्स कंट्रोल्ड, व्हिच इज ट्रू फॉर मटेरियल मॉडलिंग टाइप ऑफ थिंग. प्लास्टिसिटी हो रही है, लोड अप्लाई हो रहा है, तो इट कैन कंट्रोल दैट. मैं फोर्स को इंक्रीमेंट करते जाऊंगा, सॉल्यूशन निकलता आएगा. बट इन सम केसेस लाइक द केसेस जहां पे स्लोप नेगेटिव हो रहा है, ये क्या केस हो सकते हैं, केस होते हैं जिसके ऐसा मटेरियल जिसके अंदर डैमेज हो रहा हो. अगर मटेरियल डैमेज होना शुरू हो गया देन उसका स्लोप रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा. यानी आप फोर्स कम, आपकी डिस्प्लेसमेंट बढ़ती जा रही है और फोर्स कम होती जा रही है, बिकॉज इट कैन बी थॉट ऑफ एज नेकिंग हो रही है या फिर क्रैक जनरेट हो गया जो कि एक्सपेंड होता जा रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और मटेरियल में जो रिएक्शंस हैं दे आर आल्सो रिड्यूसिंग. ठीक है, फोर्स रिड्यूस हो रही है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रही है.
unstable हो गया system. If it is like this, so then force control doesn't really work. In this type of problems, displacement control किया जाता है. तो आप खुद boundary conditions लगा रहे होंगे, displacement की form में लगाएं. आप for example एक कोई भी system लें इस तरह का, और उसमें let's say कि यहाँ पे crack भी है और आप crack propagation भी study कर रहे हैं, and इस पे अगर मैं force लगा के solve करूंगा तो हो सकता है convergence ना हो. लेकिन अगर मैं इस पे displacement लगा के solve करूंगा तो it will converge, because जब भी क्रैक होना शुरू होगा, स्लोप आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट से फोर्स निकालना इट्स इजी, बट फोर्स का इंक्रीमेंट आप नहीं कर सकते. अगर मैं बोलूं कि इससे आगे मैं फोर्स बढ़ा दूं, देन देयर इज नो सॉल्यूशन हियर, तो इट वोंट बी एबल टू सॉल्व एनीथिंग. तो इन केसेस वेयर वी आर एक्सपेक्टिंग डैमेज और नेगेटिव स्लोप्स, डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल अप्लाई हो रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट कंट्रोल मींस कि आपकी जो एक्चुअल लोडिंग हो रही है वो भी डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में हो रही है. ठीक है, तो दैट इज आल्सो समथिंग दैट गोज ऑन. राइट, जनरल हमारे पास एक नॉन-लीनियर सॉल्यूशन के स्टेप्स आ गए. दिस इज जस्ट अ समरी, यू कैन जस्ट, वी हैव डन दिस, तो उसको मैं रिव्यू नहीं कर रहा, बट यू कैन हैव अ लुक एट दिस. न्यूटन-रैप्सन और मॉडिफाइड न्यूटन-रैप्सन कौन सा होना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलवेज गो फॉर इंक्रीमेंटल सॉल्यूशन. हम डायरेक्टली पूरी फोर्स में लगाते हैं नॉन-लीनियर, अनलेस कि हम बहुत ही बाउंड्री ऑफ नॉन-लीनियर पे आ रहे हैं, लेकिन वी एक्सपेक्ट के इनिशिएट हो रही है प्लास्टिसिटी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा नहीं. फाइन, बट अगर आपके पास वी एक्सपेक्ट के सिग्निफिकेंट नॉन-लीनियरिटी है, देन वी ऑलवेज गो फॉर इंक्रीमेंटल सॉल्यूशन. ठीक है, तो इंक्रीमेंटल सॉल्यूशन के अंदर वी वांट टू हैव मेनी आइटरेशंस. तो अगर मेरे पास सिर्फ ज्योमेट्रिक नॉन-लीनियरिटी है तो 8-10 आइटरेशंस यूजुअली वर्क, बट अगर बहुत हाईली प्लास्टिक सॉल्यूशन है तो वी माइट नीड टू हैव 20 to 100 to even several hundred iterations to get to converge one लोड इंक्रीमेंट. सही है. न्यूटन-रैप्सन और मॉडिफाइड न्यूटन-रैप्सन दोनों यूज हो सकते हैं. बाय डिफॉल्ट कंसोल के अंदर ऑटोमेटिक न्यूटन-रैप्सन मेथड है. ठीक है, ऑटोमेटिक का मतलब है इट चेक्स वेदर इट नीड्स टू अपडेट द सॉल्यूशन और नॉट. ठीक है, तो जो ये वाला ऑप्शन है ना, ऑटोमेटिक स्टिफनेस अपडेट वाला, कंसोल के अंदर दिस इज द डिफॉल्ट. इट डज नॉट अपडेट इट एवरी टाइम, it does not keep it constant. What it does, it has its checks. बेस पे वो देखता है कन्वर्जेंस कैसी जा रही है, कन्वर्जेंस मुश्किल हो रही है कि नहीं हो रही. अगर मुश्किल हो रही है तो it will update the solution. Okay. लेकिन अगर बहुत ही क्विकली अपडेट हो गई, लेकिन 1-2 इटरेशंस में आपका स्टेप सॉल्व हो गया, तो फॉर द नेक्स्ट स्टेप इट माइट नॉट एक्चुअली रिकैलकुलेट के, इट विल जस्ट यूज द प्रीवियस. ठीक है, तो इट इज मोर इंटेलिजेंट देन आइदर ऑफ द टू, न्यूटन-रैप्सन और मॉडिफाइड न्यूटन-रैप्सन. Automatic stiffness update. I'll just switch to COMSOL in a bit and I'll show you where these settings are in COMSOL as well.